A very good morning everyone. Welcome to my YouTube channel Sonia Banga Classes. Today we are going to discuss the summary of the chapter The Last Lesson, which is written by Alphonse Daudet. So the last lesson is set in the days of Franco-Prussian War. Prussia defeated France and the French district of Alsace and Lorraine passed into Prussian hands. प्रूशिया ने फ्रांस को डिफीट किया और जो फ्रेंच की डिस्ट्रिक्ट थी एल्सेक और लॉरेन वो अब किसके हैंड्स में शिफ्ट हो गई प्रूशियन के. सो दिस चैप्टर द लास्ट लेसन कवर्स द थीम ऑफ पैट्रियटिज्म, फ्रीडम ऑफ लैंग्वेज एंड लव फॉर वंस मदर्स टंग. This story stresses on the importance of education and the necessity to respect and learn one's own language. Okay, so in this chapter you can see the different characters. Mr. Hamel, a sincere French teacher who knew his subject very well. He is very passionate about the French language. He considers the French the clearest, the most beautiful and the most logical language in the world. And he feels that language is the key to a person's sense of freedom. As I told you before that Mr. Hamel, who is proud of being French, once he got upset and distressed by the occupation of Alsace by the Germans. So now I am going to discuss the brief summary of this chapter, the last lesson. Franz, who is the narrator of this chapter, is a school-going boy and he started for school very late that morning. Actually, he was very afraid of being scolded because Mr. Hamel, the French teacher, he was to question them on participle. But French, who was a school-going boy, he did not know the first word about them. So he thought of running away and spending the day out of doors. Now, how was the day there? The warm, bright day, the chirping birds and the Prussian soldiers drilling in the open field back of the sawmill were tempting. But he resisted the temptation because he was willing to go to school. That's why he hurried off to school. There was a crowd in front of the bulletin board near the town hall. Watcher, the blacksmith, asked French not to go so fast. He assured the boy that he would get to his school in plenty of time. वॉचर जो ब्लैकस्मिथ थे उन्होंने फ्रेंच को एक्चुअल में कमेंट करते हुए एडवाइस किया नॉट टू मूव सो फास्ट. ओके, सो यूजुअली देयर वाज अ ग्रेट बसल व्हेन द स्कूल बिगिन. जैसे ही स्कूल स्टार्ट होता था तो बहुत ज़्यादा शोर होता था. बट दैट डे एवरीथिंग वॉज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, मीन्स नो वन वॉज देयर. नाउ थ्रू द विंडो फ्रेंड्स सो हिज क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस. जितने भी उसके फ्रेंड्स थे वो देवर ऑलरेडी देयर इन देयर प्लेसेस, ऑलरेडी अपनी सीट्स पर बैठे हुए हैं. एंड मिस्टर हैमल, ओके, सिंसियर फ्रेंच टीचर, वॉकिंग अप एंड डाउन with his terrible iron ruler under his arm. French silently opened the door and went in. He blushed because his face was, he was getting frightened, and that's why he blushed and was frightened. Mr. Hamel very kindly asked him to go to his place. French noticed that their teacher had put on his beautiful green coat. नाउ अब जो फ्रेंड्स सेंसिटिव और इनोसेंट हैं उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा दैट हिज स्कूल टीचर हैड पुट ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट, हिज फ्रिल शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, एंड द कैप वॉज ऑल एम्ब्रॉयडर्ड. ही वोर दीज ओनली ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज. इस तरह के यूजुअली जो कपड़े थे वो कब पहनते थे? इंस्पेक्शन और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे पर पहनते थे. द विलेज पीपल, ही नोटिस दैट फ्रेंच ने क्या नोटिस किया? द विलेज पीपल वर सिटिंग क्वाइटली ऑन द यूजुअली एम्प्टी बैक बेंचर्स. जो भी बैक बेंचर्स होते थे उनके वहाँ पर वो सभी बिल्कुल खाली रहते थे बेंचेस. बट ऑन दैट डे द विलेज पीपल वर सिटिंग क्वाइटली देयर. एवरीबडी लुक्ड सैड.
ओके सभी बिल्कुल सैड लग रहे थे. एंड होसर हैड ब्रोट एन ओल्ड प्राइमर. और जो होसर थे, जो ओल्ड होसर थे, उन्होंने क्या देखा कि वो एक क्या लेकर आए थे, अपनी एक ओल्ड प्राइमर. प्राइमर मीन्स हेयर स्टैंड्स फॉर बुक. मिस्टर हैमिल सेड दैट. अब मिस्टर हैमिल ने सभी को क्या इन्फॉर्म करते हुए बताया दैट इट वॉज हिज लास्ट फ्रेंच लेसन he would give them. Henceforth, only German was to be taught in the schools of Alsace and Lorraine. अब उन्होंने आगे भी बताया दैट कि जितने भी अब स्कूल्स हैं उन एल्सैक और लॉरेन के स्पेशली, उनमें क्या पढ़ाया जाएगा अब, जर्मन लैंग्वेज को. सो द न्यू मास्टर वुड कम द नेक्स्ट डे. जो न्यू मास्टर है ही विल अराइव द नेक्स्ट डे एंड दिस वॉज देयर लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच. And that's why Mr. Hamill wanted them to be very attentive in the class. Okay, so अब attention चाह रहे हैं उन सब की मिस्टर हैमिल. फ्रेंच फेल्ट सॉरी. एक्चुअली फ्रेंच, जिसको पहले अपनी इन सभी बुक्स को देखकर क्या लगता था कि उसने क्या किया है, इग्नोर किया है इनको. ओके, सो फ्रेंच फेल्ट सॉरी दैट ही हैड नॉट लर्नड हिज लेसन्स प्रॉपरली. क्योंकि अभी तो उसने पढ़ना स्टार्ट ही नहीं किया था और अभी उसको इस लैंग्वेज को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा और न्यू लैंग्वेज को अडॉप्ट करना होगा. सो फ्रेंच वॉज फीलिंग सॉरी दैट ही हैड नॉट लर्नड हिज लेसन्स प्रॉपरली. द आइडिया दैट मिस्टर हैमिल वॉज गोइंग अवे मेड द नरेटर फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर. अब जो आइडिया मिस्टर हैमिल ने वहाँ पर डिलीवर किया सभी को दैट इट वॉज हिज लास्ट फ्रेंच लेसन, तो इस वजह से फ्रेंच जो स्कूल गोइंग बॉय है, जो नरेटर हैं, वो अपने सारे उस स्कूल के जो डेज थे, जो उनका स्ट्रिक्ट बिहेवियर था टीचर का, उनका जो रूलर था, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, बिल्कुल वो इग्नोर करने लगे, भूल गए. नाउ फ्रेंच अंडरस्टूड. अब फ्रेंच को अंडरस्टूड, उसको ये समझ में आया दैट वाई मिस्टर हैमिल हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स, कि आज वो इतने स्पेशल ड्रेस में क्यों आए थे. एंड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर, और क्यों वो जो ओल्ड मैन थे वो वहाँ पर आए थे. ओके, सो इन दिस chapter we can say that the different characteristics of Mr. Hamill are shown here. Okay, what are they? Emotional, hardworking, patriotic, loyal, honest and sensitive. So they had come to thank the master. Actually, why the old men were there? The old men were there to thank the master for his 40 years faithful service and to show their respect for the country that was theirs no more. और वो अपनी कंट्री को और उनको टीचर को रिस्पेक्ट देने के लिए आए हैं, क्योंकि जो कंट्री अब उनकी नहीं रही, अब किसने उस पर अपना हक जमा लिया है. ठीक है, जो न्यू पर्सनस वहाँ पर अब अराइव करने वाले हैं, जो एल्सैक और लॉरेन के स्कूल्स में जर्मन पढ़ाने वाले हैं. ओके, सो मिस्टर हैमिल ही आस्क्ड फ्रेंच टू रिसाइट बट ही स्टूड देयर साइलेंट. अब उनकी टर्न थी, फ्रेंच को उन्होंने बुलाया और उसको रिसाइट करने के लिए बोला, बट फ्रेंच को तो कुछ भी नहीं आता था. सो ही स्टूड देयर साइलेंट. सो ऑन दैट डे द टीचर डिड नॉट स्कोल्ड हिम. टीचर ने अब उनको डांट नहीं लगाई और उसको फ्रेंच को क्या बताया दैट ही कन्फेस्ड दैट हिज पेरेंट्स एंड ही हिमसेल्फ वर एट फॉल्ट. अब उन्होंने, टीचर ने यहाँ पर ये कन्फेस किया कि उसके पेरेंट्स और वो खुद टीचर क्या थे, उनकी ही गलती है कि फ्रेंच को पढ़ना नहीं आता, फ्रेंच को रिसाइट करना नहीं आता, उनकी लैंग्वेज के बारे में उसको कुछ पता नहीं है. तो ये सारी मिस्टेक्स किसकी हैं, टीचर की और उनके पेरेंट्स की. देन ही टॉक्ड अबाउट ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज. ओके, तब उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करते हुए बताया दैट इट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, द क्लियरेस्ट वन एंड द मोस्ट लॉजिकल वन. He asked them to guard it among them and never forget it. अब उन्होंने वहाँ जितने भी लोग बैठे थे, विलेज पीपल, स्कूल स्टूडेंट्स, उनको एडवाइस किया नॉट टू फॉरगेट दैट लैंग्वेज. वाई? बिकॉज देयर लैंग्वेज वॉज द की टू देयर प्रिजन. क्योंकि वो जो लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज उनके लिए क्या प्रूव हो सकती है, उनकी एक प्रिजन की. ओके, क्योंकि वो अपनी लैंग्वेज में बात करके अचानक से वो क्या कर सकते हैं, उस प्रिजन को तोड़ सकते हैं. देन दे हैड लेसन इन ग्रामर एंड राइटिंग. अब मिस्टर हैमिल ने उनको ग्रामर और राइटिंग सेक्शन का कुछ काम करवाया. सो द पिजन्स कूड वेरी लो ऑन द
रूफ और मीन टाइम पिजन्स के कू की आवाज़ वहाँ पर आई रूफ पर. सो फ्रेंच थॉट, अब फ्रेंच क्या सोचने लगा, इफ़ दे वुड मेक इवन द पिजन सिंग इन जर्मन, कि क्या वो पिजन्स को या बर्ड्स या एनिमल्स को भी जर्मन लैंग्वेज में सिंग करना सिखाएंगे, व्हाट वुड हैपन. ऑल द वाइल मिस्टर हैमिल वॉज सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर. अब मीन टाइम क्या हुआ, मिस्टर हैमिल वो अब कहाँ बैठे हैं, ही वॉज सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर. ओके, एंड गेजिंग एट वन थिंग और द अदर. और अब वो क्या कर रहे हैं, कभी एक चीज़ को और कभी दूसरी चीज़ को देख रहे हैं. हिज सिस्टर वॉज पैकिंग देयर ट्रंक्स इन द रूम अबव. और उनकी जो सिस्टर है वो क्या कर रही हैं, ऊपर रूम में सभी चीज़ों को, अपने सामान को पैक कर रही हैं ट्रंक्स में. एज दे हैड टू लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उन्हें अब इस कंट्री को नेक्स्ट डे कहाँ जाना है, छोड़कर जाना है. आफ्टर राइटिंग दे हैड अ लेसन इन हिस्ट्री. ओके, अब उसके बाद हिस्ट्री के लेसन के बाद देन द बेबीज चांटेड देयर बाबी बू बो ओ. इवन ओल्ड होसर वॉज क्राइंग. ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12. और अचानक से चर्च की जो क्लॉक थी वहाँ पर कितना टाइम हुआ, 12 o'clock. एंड देन द मिड डे प्रेयर्स, इट वॉज अ टाइम ऑफ मिड डे प्रेयर्स. एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रूशियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर द विंडोज. अब प्रूशियंस की वहाँ पर सोल्जर्स की आवाज़ आने लगी. ओके, so at the arrival of Prussian soldiers, okay, becomes overwhelmed with emotions and his voice chokes. अब उनकी जो आवाज़ थी वो बिल्कुल चौक्ड होने लगी. मिस्टर हैमिल वो वहाँ पर खड़े हो गए. ही स्टूड अप एंड ही वांटेड टू स्पीक. ओके, वो अब कुछ बोलना तो चाहते थे बट समथिंग चॉक्ड हिम, बट उनके मुंह से कोई भी आवाज़ नहीं निकली. ओके, बिकॉज मिस्टर हैमिल as the class came to an end. Okay, so Mr. Hamel, he looked very sad. Before he dismissed the class, he wrote on the board. Okay, उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखा, in very large letters. क्या लिखा, vive la France, means long live France. Okay, so in this chapter the different characteristics of Mr. Hamel and French are shown. So we can say that the last lesson reflects the importance of education and the necessity to respect and learn one's own language. जिस तरह से मिस्टर हैमिल ने फ्रेंच लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस को शो किया है, अपनी लैंग्वेज को किस तरह से रिस्पेक्ट करना है, सीखना है, इसके बारे में हमें बताया है. ओके, सो दिस इज़ इट विद टुडेज समरी, टुडेज लेक्चर. थैंक यू and don't forget to subscribe my YouTube channel Sonia Banga Classes.